एजेकियल 37 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर 37-38 पढ़ना है, फिर BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमारे मन की शक्ति में तू प्रवेश कर, हमारे मन के सोच में तू प्रवेश कर, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में तू प्रवेश कर। पवित्र आत्मा प्रवेश कर, प्रवेश कर, तेरे वचन को लेकर तू प्रवेश कर, तेरा वचन हमारे अंदर लेकर तू प्रवेश कर। पवित्र आत्मा प्रवेश कर, हमें तेरे वचनों से भर दे ताकि शैतान के काम हमारे मन के अंदर रुकने ना पाए, हमारे सोचों का कब्जा शैतान लेने ना पाए, हमारे सोचों के अंदर शैतान अपने गढ़ बनाने ना पाए, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में शैतान अपना नियंत्रण लेने ना पाए। हमें खोल दे खुदा, हमें खोल दे, उसके चंगुल में से छुटकारा दे और तेरे वचन प्रबल कर हमारे अंदर, तेरे वचन प्रबल कर हमारे मन के अंदर, तेरे वचन प्रबल कर हमारे इंस्पिरेशंस के अंदर, तेरे वचन प्रबल कर हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर, तेरे वचन प्रबल कर हमारे इमेजिनेशंस के अंदर। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। The vision of dry bones, first verse से पढ़ेंगे। The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking. And the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, Son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breathe, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off from our parts. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I the Lord have spoken it, and performed it, saith the Lord. The word of the Lord came again unto me, saying, Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it for Judah and for the children of Israel, his companions. Then take another stick, and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions, and join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by this? Say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and tribes of Israel his fellows, and I will put
and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes, and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land, and I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all, and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all. Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of all their dwelling places wherein they have sinned, and will cleanse them. So shall they be my people, and I will be their God. And David my servant shall be king over them, and they all shall have one shepherd. They shall also walk in my judgments, and observe my statutes, and do them. And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt, and they shall dwell therein, even they and their children, and their children's children, forever. And my servant David shall be their prince forever. Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will place them and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. My tabernacle also shall be with them. Yea, I will be their God, and they shall be my people. And the heathen shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. Chapter 38, Army of Gog. His evil attempts. First verse say, And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, Gog, the chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords, Persia, Ethiopia, and Libya, with them, all of them with shield and helmet, Gomer and all his bands, the house of Togarma of the north quarters, and all of his bands, and many people with thee. Be thou prepared, and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited in the later years. Thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste, but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy hands, and many people with thee. Thus saith the Lord God, it shall also come to pass, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates, to take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land. Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey, to carry silver and
gold to take away cattle, and goods to take a great spoil? Therefore, Son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord God, in that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it? And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. And thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the later days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. Thus saith the Lord God, Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants, the prophets of Israel, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them? And it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in my face. For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel, so that the fishes of the sea and the fowls of the heaven and the beasts of the field and all creeping things that creep upon the earth and all the men that are upon the face of the earth shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord God. Every man's sword shall be against his brother, and I will plead against him with pestilence and with blood, and I will rain upon him and upon his hands and upon the many people that are with him, and overflowing rain and great hailstones, fire and brimstone. Thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. Thank you, Jesus. हम यहेजकेल 37 अध्याय और 38 अध्याय पढ़ेंगे। सूखी हड्डियों की तराई, BSI बाइबल। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं, और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में मांस समाऊंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और भुई डोल हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढांप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई, और हमारी आशा जाती रही।
हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तो तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारी निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा और इस्राएल एक ही राज्य। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके सारी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तो हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचाऊँगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियाँ जान लेगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। परमेश्वर का साधन गोग 38 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुँह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जकड़ों में आकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे और उनके संग फारस, कूश और पूत को
जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और तू कहेगा, मैं बिन शहर पनाह के गाँवों के देश पर चढ़ाई करूँगा। मैं उन लोगों के पास जाऊँगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेंटों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरा द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। गोग को परमेश्वर का दंड। 17 वचन से आगे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इस्राएल के उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इस्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा। जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हरेक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकद्दमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा, और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा, और बहुत सी जातियों के सामने
अपने को प्रकट करूँगा, तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। थैंक यू जीसस। 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 15 चैप्टर 11 वर्स से 19 वर्स। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 27 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से 19 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 27 अध्याय। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता की है इन सारे वचनों के अधीन आने का। आपने हमें मार्ग दिया, आप हमसे प्रेम करते हो, ये आपने साबित किया। आपके समान हमें पवित्र रहने का रास्ता दिलाया। आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने अकेले में बैठकर एक समय बिताना है, और जैसे हम अकेले में बैठकर ये वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारे व्यक्तिगत समय में हमको अपनी पर्सनालिटी देगा, जो परमेश्वर के काम करने के लिए ज़रूरी है। ऐसा स्वभाव गुण हमारे अंदर वो भरेगा। ऐसा होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, हमें सिखा रहा है। हमने उसका लाभ लेना है, और निश्चित हमने उसका लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आप फिट एंड फिक्स कीजिए, हमारे जीवन को शहरपना बनाइए। एक अच्छा और सुंदर सा अनुभव हमारे जीवन में भरिए। हमें परमेश्वर ईश्वरीय कॉलिंग, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय रचना में हमको भर दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।